I'm Jay Das. I am an associate director and an associate professor at the Institute for Global Health and Development. I'm based at Khan University, Karachi. The topic that I'm going to talk about is regarding the effect of extreme heat. Uh, we all know it's a global known now that extreme heat has phenomenal impacts on a range of health outcomes, and it affects all the populations irrespective of the age, gender, where do they live. But one of the most vulnerable population, unfortunately, as always is the case, are the girls again. Girls and women of this country are the one who are suffering the most. And this is due to a variety of reasons. First, I'll tell you what are the biological reasons that why these girls or women are most vulnerable. First of all, there is ample research now which is coming out and showing that how this is affecting girls as early as before puberty, and even affecting the age of puberty, their menarche, their menstrual cycles, the duration of those. So it's affecting right at the start of the puberty, and when they grow up, it affects their nutrition also, and when they get married, become pregnant. And now there is, I think, enough literature which is showing that every pregnant woman who is exposed to higher temperatures and like a 1 degree Celsius higher temperature have 10 to 15% higher chances of children being preterm, which means they are born before time, being low for their birth weight, or even being small for their gestational age. So a lot of studies are coming of showing of those impacts. And apart from that, in our context, what we're seeing that extreme is also affecting, having an impact on non-communicable diseases, which includes high blood pressures, diabetes mellitus. So studies are coming in those aspects also. And one of the major area that we are seeing that how is it is impacting the mental health of the even as early as adolescents. Now there are terms which have been coined for this climate anxiety, which wasn't there, and these especially these adolescents and young populations are the populations which are affected the most because of this. So this is how it affects, and this affects how a life cycle approach from a child being born preterm, low birth weight, and up to its adulthood. And we went there 3 years after those floods. We did a baseline assessment for all the adult women, and what we found, 30% of those adult women had some sort of an anxiety or depression, and that was a huge number. It was a big surprise for us. So what we thought, what could we do, and what could be done which could be scalable. So of course we cannot advocate that there could be a psychologist or psychiatrist in every basic health unit, leave aside a district. So it was very difficult to advocate for that. But what we thought was, why don't we do this? And our primary healthcare system do some preliminary stuff, whether to see whether those could have an impact. So what we did was we equipped a risk of mental health disorder. So every screen positive woman from the lady health workers was sent to a primary healthcare facility where doctors were trained to provide some counseling, and women who had moderate to severe level of mental health issues, then they were sent to a psychiatrist at the district level. And apart from that, what we asked the lady health workers to do sessions, resilience building sessions within the communities. It was a small pilot project. We were looking at the feasibility. It was just a 6 month project. I personally thought we would not get any impact, but we just wanted to see whether this is feasible, whether lady health workers can do it, whether the doctors in the primary healthcare facility can provide some counseling or not. But when we did a endline survey after 6 months, I personally was really surprised to see there was a significant impact on anxiety and depression. So we went ahead and saw what worked there, because just having a 2 sessions, you cannot have such a big impact. And what we found was the major reason was that these women found a place to talk, vent out their frustrations. So I think that was a major reason. So I always say this, although the problem looked really huge. हाँ, थोड़े मसला है बेचारे का, औरतों का, जो कुछ मना के दवाई वगैरह दूर है हॉस्पिटल, मेडिसिन वगैरह हम देते हैं, सेशन कराते हैं, हम बताते हैं सब कुछ खाद खुराक के बारे में, बच्चे के बारे में। कम्युनिटी के से आते हैं जो मना वो कहती है हमारे बच्चे हैं जो कमजोर है, उसकी वजह से बताएं, हम बताते हैं उसको। तो कुछ मना उसके जो का खाद खुराक की ख्याल रखे, माँ अपने बच्चे की मना सफाई का ख्याल रखे, माँ अपना ख्याल रखे सफाई का,
तो सफाई ख्याल रखेगी ना तो खुद वो बच्चा सही हो जाएगा। माँ अपना खाद खुराक का ख्याल रखे, बच्चे का ख्याल रखे, वो खुद खाए या बच्चे को खिलाए, सूची खुराक खिलाए, जो भी घर में है जो बच्चा है सो खाए, खुद खाए, बच्चे को खिलाए। के लिए हमें इमदाद मिल सकती है हुकूमत से। इमदाद से मुराद ये है कि हमें कोई फाइनेंशियल वो नहीं, मगर उनके अपने प्रोग्राम के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। और हमारी एक शर्त थी, मेरे आने की एक शर्त थी, जो उस जमाने के गवर्नर यानी मखदूमों से मेरी बात हुई थी। मैं कहा हम आने के लिए तैयार हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ। उस जमाने में हाला था, ये मटियारी डिस्ट्रिक्ट बना नहीं हुआ था। मैं कहा शर्त मेरी ये है कि आप हमें काम करने देंगे और हमारे काम में मुग़ल अंदाजी नहीं करेंगे और कोई सिफारिशें नहीं करेंगे। एंड मैं आज आपको 30 साल के बाद वसूख से कह सकता हूँ कि आज तक एक लोकल पॉलिटिशियन ने मुझको फ़ोन नहीं किया कि फ़लाने को नौकरी दो या फ़लाने को निकाल दो या फ़लाने को रख लो। ये बहुत बड़ी बात है। सो ये जो लोग कहते हैं कि ये हुकूमत साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है, ये होता है वो होता है, गलत कहते हैं। इमाम बारगाह है, उन्होंने हमें जगह दी हुई थी, आधा हमने अपना जो काम है उनके साथ शुरू किया। फिर जब काम बढ़ गया इतना कि हमारी गाड़ियों के खड़े होने की जगह नहीं थी, तो हमने फिर ये फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट से ये जगह ली और यहाँ सेंटर बनाया। और ये सेंटर नहीं, ये है ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ हम लोगों को ट्रेन करते हैं, लाते हैं, बताते हैं, हुनर सिखाते हैं और उन्हीं की वसातत से इस सारे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट तकरीबन 1 मिलियन आबादी का डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल हैदराबाद के साथ मदगम है। तो अगर आप हैदराबाद की आबादी ले लें, यहाँ की आबादी ले लें और कैशमेंट आबादी ले लें, तो ये काफ़ी बड़ा इलाका है। और ये इस वास्ते भी अहम है कि अगर आप यहाँ का माहौल देखें, इतना दूरफ्तादा नहीं है कि आप इसको कहें कि यहाँ आप काम करके फिर कहीं पाकिस्तान के दीगर किसी इलाके में उसको रेप्लिकेट या उसको आप नाफिज नहीं कर सकते। तो हमारा एक ये भी बड़ा एक ज़रूरी सरहद के लिए भी ठीक हो कि अगर हम ले जाकर कह सकें कि ऐसे देही इलाकों में जहाँ बिल्कुल गरीब गुरबा रहते हैं, उसमें आप ये काम करें तो आपके हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, इस सेंटर में क्या होता है? यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया जाता है जिनका ताल्लुक ज़्यादातर पाकिस्तान के गंभीर किस्म के मसाइल, हेल्थ के, सेहत के मसाइल से हों या न्यूट्रिशन के मसाइल से हों। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमने हाला और मटियारी के इलाके में सन 2000 में किया था, वो नौज़ायदा बच्चों की सर्वाइवल का प्रोजेक्ट था। पहला प्रोजेक्ट था देखने के लिए कि क्या ये लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, इन वसातत से अगर आप कम्युनिटी के साथ काम करें तो क्या बच्चों की शरह अमवात में कमी हो सकती है। इंतहाई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, 5 साल लगे हमें, काफ़ी मुझे उसके लिए वसाइल लाने पड़े। उसमें वो चीज़ें शामिल हुई जो कि नौज़ायदा बच्चों की सेहत के लिए अहम हो सकती हैं। अब इतने सालों के बाद यहाँ इतने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं और हम करें, फिर आपको वॉश आउट पीरियड देना पड़ता है ताकि फिर नया तजर्बा करने से पहले इलाके में जो है वो चीज़ जो है वो साइंसी तहकीक करते हैं। ये वो हैं जहाँ के हम सेहत को बेहतर करने के लिए जो करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, जो हुकूमत पाकिस्तान के अपने इस वक्त नाफिज किए हुए प्रोग्राम हैं, उनमें हम बेहतरी देखते हैं। तो ये नहीं है कि किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा और किसी को बहुत कुछ मिल रहा है। जवान नौजवानों की, जिनको हम एडोलेसेंट्स कहते हैं, उनकी सेहत बहबूद और उनकी नशोनुमा पे भी काफ़ी काम किया है। और कई ऐसे हमने चीज़ों का मुतालिया किया है जिससे हमें यह अंदाज़ा हुआ कि कौन सी चीज़ काम करती है और कौन सी चीज़ काम नहीं करती। तो तहकीक में एक बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल साफ तजर्बा कामयाब हो, मगर हर तजर्बा जो आपको चीज़ सिखाता है वो बड़ा ज़रूरी है कि उससे आप फिर प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करें मज़ीद। लेकिन जो लोगों के घर बने हुए हैं, जिस किस्म के भरे हुए हैं, अब उनको हम मतलब ख़त्म करके कोई नए घर तो बनाने से रहे, तो हमने कुछ मॉडिफिकेशन मुख्तलिफ जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, क्लाइमेटिक या इन्वायरमेंटलिस्ट या आर्किटेक्चर इंजीनियर थे, उनके साथ मिलकर कुछ इस किस्म के मॉडिफिकेशंस बनाए हैं कि एग्जिस्टिंग जो लोगों के घर हैं उनमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हम करें ताकि उन लोगों का ना सिर्फ कंफर्ट लेवल बेहतर हो बल्कि गर्मी के जो असरात हैं उनके घर पर जो डायरेक्टली पड़ रहे हैं वो कम हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक पायलट फेज शुरू किया जहाँ पे कोई 8 से 10 डिफरेंट किस्म के जो इंटरवेंशंस हैं वो हमने टेस्ट किए। वो ना सिर्फ लोगों की कंफर्ट से टेस्ट किए बल्कि हमने डिफरेंट किस्म की वहाँ पे डिवाइसेस जो एनवायरमेंटल डेटा कलेक्ट करने के लिए जो गैजेट्स और डिवाइसेस होते हैं जो हमें ह्यूमिडिटी, जो हमें टेम्परेचर और इस किस्म की चीज़ें बताती हैं, उनके साथ हमने उनको टेस्ट किया कि बाकी कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है
जो कि हमें आगे लेकर दूसरे गांव में लेकर जानी चाहिए। तो उसमें एक इंटरवेंशन है शेडिंग का। लोकल मटेरियल, इंडिजिनस नॉलेज के साथ हमने बांस, बेम्बू के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस किस्म के, एग्जिस्टिंग जो लोगों की छत है उसके ऊपर एक और लेयर छत की बनाई है, ताकि वो डायरेक्ट जो सनलाइट उस छत पे पड़ती है, जो कि तकरीबन मोर देन 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है पीक समर में, वो कम हो जाए और इंटीरियर जो टेम्परेचर, इंडोर टेम्परेचर जो है, एम्बिएंट टेम्परेचर घर का, उसमें नुमाया तौर पर कमी आ सके। इस मिलेंगे जो कि एक कमरा बना हुआ है, उसके आगे ना बरामदा है ना कोई छांव है, डायरेक्ट सनलाइट जो है वो उस घर को इफेक्ट करती है और वो रूम जो है वो 3 अतराफ से या 4 अतराफ से एक्सपोज्ड है, सारा दिन उसको सूरज की तपिश और गर्मी लगती है। तो आगे छज्जा बनाने से ये हुआ कि जो डायरेक्ट धूप लगती थी उनके दरवाजे पे, उनके विंडो पे और आधे कमरे तक अंदर आती थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो उसको पूरा एक रिलीफ मिल गया। सामने वाली जो दीवार है उसको, और उसका इफेक्ट हम अभी देख पा रहे हैं कि भाई टेम्परेचर कम हुए। इसके अलावा उन लोगों को ज़्यादा कमरा गर्म हो रहा था, तो अब वो उस छज्जे के नीचे जो है वो अपना चूल्हा बनाकर वहाँ पे खाना पकाती हैं, तो उनको कमरे से इफेक्ट भी कम हो गया और उनको एक जगह भी मिल गई इजाफी। इसके अलावा उनके रोज़मर्रा के जो काम है, बर्तनों के, बच्चों के या सिलाई कढ़ाई के जो काम है, उनके लिए भी उनको एक वहाँ पे स्पेस मिल गया। दूसरा जो मेन हमारा मटेरियल यूज़ होता था हमारे यहाँ, जिसमें मट्टी, लाइम और जूट और एनिमल डंग, ये सारी चीज़ें मिक्स करके लोग लगाते थे। और जो तिनका बो जिसको हम कहते हैं सिंधी में, गंदुम के जो तिनके होते हैं दानों में से जो निकलते हैं, वो उसमें मिला के मटीरियल से हम मुख्तलिफ उसमें। इसके अलावा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ, पहले गांव देहात में ज़मीन पे, खेतों पे जो लोग एग्रीकल्चर पे ज़ाहिर है ज़्यादातर काम करते हैं, वो ज़्यादा रिस्क पे भी हैं, तो उनको बैठने के लिए, काम से ब्रेक करने के लिए कोई छाँव, कोई भी किसान काम करते हैं, तो वहाँ उनके आराम करने के लिए हमने कुछ कम्युनिटी स्पेसेस भी बनाए ना, थोड़ा कंफर्ट हासिल करें, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी भी हो, वहाँ पर छाँव भी हो और वो चीज़ हवादार भी हो। इनकी